Hello my dear students, back to our English class. Yes, today we'll study chapter 12, that is the scholar's mother tongue. Yes, आज हम अपना chapter number 12 scholar's mother tongue के बारे में पढ़ेंगे. And before starting our lesson शुरू करने से पहले I will show you one image और आपको बताना है कि ये क्या है. What is it? Observe the image और बताओ इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस है. Okay, now see, these are the different languages. अलग अलग languages में अलग अलग शब्द लिखे हैं. So you have to tell which are the different languages. Do you know, children? See. This is India, map of India. There are 29 states. You can see each state has its own language. So there are different languages also in India. What is your language? What is your mother tongue? Gujarati. So you can see, yes. So when I saw you this image, there are different languages. It is written in different language. Yes, the word is given here and it is the one word only is written in different languages. So this is the short description of different languages. There are different languages. That means Bangla, Gujarati, Hindi, Bhojpuri, Malayalam, Kannada, Tamil, many. See, this is many different languages. This is the list of different languages of India. Yes, because this was the introduction of our lesson. Madam introduced you about different languages. Do you know why? Because today we will study the scholar's mother tongue. उसमें ये lesson में languages के बारे में है. तो you should know ना that there are many different languages. As we are living in country India, there are 29 states and 29 different languages. Also, as we are living in Gujarat, we are speaking in Gujarati, but Gujarati में भी कितनी अलग होती है ना variation. Yes, when you go to Ahmedabad, it is different. When you go to Kutch, it is different. So it is like that. So there are many different languages which is shown in this image. Is it okay? So the concept of language is clear now. Now we'll start with new words and meanings. Lesson शुरू करने से पहले we'll start new words, because if we'll understand the words and meanings of the lesson, it will make more easy to understand our lesson. So we'll start with new words. The first one is scholar. Bachcho, if you have noticed one thing, see, the heading of the lesson is the scholar's mother tongue. Lesson itself is the meaning word scholar. So we should know the meaning of the word scholar. What is the meaning of the word scholar? It is a person who is highly educated. Meaning of the word scholar is person who is highly educated. और उसको हिंदी में विद्वान भी बोलते हैं. जो पर्सन हाईली एजुकेटेड है उसको विद्वान बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज मदर टंग. व्हाट इज मदर टंग? मदर टंग इज अ लैंग्वेज विच अ पर्सन स्पीक्स फ्रॉम चाइल्डहुड. बचपन से जो हम भाषा बोलते आए उसको मदर टंग बोलते हैं बच्चों. यस, लैंग्वेज विच इज स्पोकन फ्रॉम चाइल्डहुड. अ पर्सन स्पीक्स फ्रॉम चाइल्डहुड. बचपन से जो हम भाषा बोलते हैं उसको मदर टंग बोलते हैं और इसको हिंदी में मातृभाषा बोलते हैं. यस, अभी हम गुजरात में रहते हैं, सो अवर मदर टंग इज गुजराती. यस, नेक्स्ट इज mastery. What is the meaning of mastery? It is a skill in a particular subject. Mastery क्या होता है? It is a skill in a particular subject.
कोई भी फील्ड होता है उसके ऊपर हमें मास्टरी होती है, उसमें मैं बहुत अच्छा करती हूँ या अच्छा करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मास्टरी। देन नेक्स्ट इज चैलेंज। व्हाट इज चैलेंज? अभी ये वर्ड अगर सुनने में आए तो आई एम रेडी टू चैलेंज, है ना, होता है ना। इनवाइटेड इनटू कॉम्पिटिशन, सी द मीनिंग इटसेल्फ इज इनवाइटेड इनटू कॉम्पिटिशन। यस, एक चुनौती बोलते हैं बच्चों इसको। हम बोलते हैं ना, अगर ऐसा मैं करके दिखाऊँ तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं चैलेंज करती हूँ, आई विल डू दिस, है ना, दैट इज ओपन चैलेंज। यस, उसको कंपटीशन के लिए हम इनवाइट करते हैं। यस, देन नेक्स्ट इज टिकल्ड। टिकल्ड इज अ लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ। सी, अभी हम ऐसे टच करते हैं ना, देन यू विल फील थोड़ा गुदगुदी होती है, दैट इज टिकलिश टच। यस, और वो लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ, और फिर हमें थोड़ी हंसी आती है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टिकल, अ लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज whispered. Whispered is speak softly or quiet voice. Softly बोलना, yes, that is whispered. Then learned. What is learned? Learned is having acquired more knowledge through studies. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते पढ़ते जो नॉलेज मिलता है उसको लर्नड बोलते हैं, है ना। Having acquired more knowledge through studies. जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा समझते जा रहे हैं, दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडिंग, और वो ज़्यादा हमें समझ में आता है, उसको क्या बोलते हैं? लर्नर। देन नंबर 8 इज इरिटेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिटेटेड बच्चों? इरिटेटेड इज़ अ फीलिंग ऑफ स्लाइट एंगर। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और थोड़ा एंगर आ जाता है, तो थोड़ी सी हमें फीलिंग आ जाती है, थोड़ा गुस्सा शुरू हो जाता है ना, दैट इज़ स्लाइट इरिटेशन, फीलिंग ऑफ स्लाइट एंगर। जैसे कि मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे भी वो नहीं करना है, ऐसे गुस्सा आता है ना कभी कभार। यस, दैट फीलिंग ऑफ एंगर इज कॉल्ड इरिटेटेड। यस, तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यू वर्ड्स from the chapter The Scholar's Mother Tongue, which will help us to understand the lesson step by step. Now we'll read the paragraph and understand the story. So ready with the textbook? Okay. Students, now we'll start our lesson from our NCERT textbook. Yes, but before starting our lesson, observe this image. ये image को देखो, क्या दिया है इसमें? Yes, king दिया है, king is there, कोटियस है, फिर एक पंडित है, और क्या है? यस, द पर्सन इज डिफरेंट लुकिंग, दैट इज बीरबल। तो अभी हमने एक इमेज से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लेसन में हमें क्या क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे। द फर्स्ट इज अकबर, यस, सेकंड इज बीरबल, देन थर्ड वन इज कोटियर्स, जो अदर पीपल है, दिख रहे हैं ना, जो चेयर पर बैठे हैं वो भी हमें देखेंगे। कोटियर्स आर द पर्सन दैट आर एडवाइजर्स। अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं किंग तो उनको आंसर बैक करते हैं। यस, देन अदर वन इज पंडित। पंडित दिख रहा है ना एकदम अलग से। यस, द लाइक लुकिंग लाइक ब्राह्मण। यस, पंडित। तो बच्चों अभी आप सबको पता ही है, देर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस story, yeah, and you know who is Akbar. Akbar is the king. बीरबल, बीरबल कौन है? हमने बहुत पहले पुरानी छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ी है ना अकबर और बीरबल की। yes, so बीरबल is the person who is known for his wisdom. वो अपनी बुद्धि से पहचाना जाता है। he is very smart person, बहुत इंटेलिजेंट है। देन नेक्स्ट, उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, उसके पास सब चीज़ों की सॉल्यूशंस होती है एंड एकदम इजी वे से वो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो जो प्रॉब्लम होती है उसको बाहर लाता है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, इट इज़ अ क्लू। हाँ, देन पंडित। पंडित इज़ अ पर्सन हु केम टू द कोर्ट एंड ही इज़ चैलेंजिंग द पीपल टू आस्क फॉर हिज मदर टंग। यस, उसकी मदर टंग कौन सी है? जैसे उसको बहुत बड़ा विद्वान है, स्कॉलर
मदर टंग, स्कॉलर मतलब विद्वान ना, तो उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस मतलब सब लैंग्वेजेस आती है, तो वो पूछ रहा है कि मेरी मदर टंग कौन सी है, कौन बताएगा, लाइक दैट। एंड कोर्टियर्स, कोर्टियर्स आर द पर्सन्स एडवाइजर्स इन द कोर्ट, इन द पैलेस। जब भी हम बैठते हैं ना किंग के पैलेस में से, यू कैन सी, या सो दिस वे नाउ विल स्टार्ट अवर lesson with this basic introduction. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. See children, it is given in the first paragraph itself. Learned Pandit, Pandit बहुत बड़ा, yes, learned था, उसको बहुत आता था, he was very highly educated also. Once visited the court of Akbar, और अकबर के कोर्ट में उसने एक बार गया था. He told the king and his courtiers that he had mastery of many different languages. उसने एंटर होके बोला सबके सामने दैट उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, मास्टरी है, मतलब ही कैन स्पीक फ्लुएंटली कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली है, तेलुगु है, गुजराती है, हिंदी है, भोजपुरी है ना, मलयालम है, कन्नड़ है, कोई भी लैंग्वेज वो बोल सकता था. देन नेक्स्ट पैराग्राफ से समझते हैं. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. अभी ये पैराग्राफ में क्या बता रहा है? Yes, the पंडित could speak on many languages fluently. ये पंडित है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलता था, जैसे कि बंगाली था, तेलुगु था, यस, गुजराती या भोजपुरी, कोई भी, यस, आसामी, उड़िया, मैनी लैंग्वेजेस, कोई भी उसको पूछता था ना, उसमें वो फ्लुएंटली आंसर करता था, तो उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज. इतना फ्लुएंटली बोलता था कि ऐसे लगता था कि येस दिस इज़ द मदर टंग ऑफ हिम, बट सब लैंग्वेज आती है तो कैसे पकड़े. एंड व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल. सब लोग फेल हो गए, कोर्टियर्स जो सारे एडवाइजर्स थे ना पैलेस में, कोर्ट में, तो उन सब ने एक एक करके सब अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको क्वेश्चन किया. एंड ही वाज सो फ्लुएंट दैट ही आंसर्ड ऑल्सो. नाउ द टर्न केम टू बीरबल. यस, सब लोग फेल हो गए, तो ये जो चैलेंज था ना वो बीरबल ने एक्सेप्ट किया. चैलेंज इज इनवाइटिंग फॉर कंपटीशन, इनटू कंपटीशन. यस, अभी ये जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कौन करेगा. यस, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट इट इज़ अ यस, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ये एक ओपन चैलेंज था, उसको बीरबल ने एक्सेप्ट किया. नाउ बीरबल, दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित्स रूम. व्हेन ही वाज asleep, he whispered into Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. तो बच्चों, अभी इसमें क्या बता रहा है बीरबल. उस रात को बीरबल चुपके से पंडित के रूम में गए. यस, बीरबल चुपके से पंडित के रूम में गए. When he was asleep, जब वो सो रहे थे. या He whispered into पंडित्स ear and tickled it with a feather. फिर उनके कानों में उनको कुछ बोला और फिर उन्होंने फेदर क्या होता है. यस, फेदर से उन्होंने कानों में उसको टच किया. यस, यू कैन सी. या फिर उनकी वजह से फेदर टच मतलब उनको ऐसे टच किया तो थोड़ा उठ गए और डर भी लगा. पंडित हाफ अवेक, फिर थोड़े उठ गए. क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड वर्ड्स इन हिज मदर टंग. फिर उठ के रोने लगे और बोले, उनकी मदर टंग में वो बोले. तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉकरोच आता है, इफ़ यू आर फ्राइटेंड ऑफ कॉकरोच से अगर डर लगता है तो आप क्या बोलोगे. यू विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ओ आई एम अफ्रेड.
जो जो पहले डर लगता है तो आप कैसे बोलोगे, ओई माँ ओई बापलिया, लाइक दिस ना. सो बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन that Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. अभी सुबह उठ के जब बीरबल नेक्स्ट डे टोल्ड एवरीवन, बीरबल ने सबको बताया, क्या बताया, पंडित की मदर टंग तेलुगु है. वो कैसे, और पंडित एक्सेप्टेड एंड वॉज सरप्राइज्ड फॉर द ट्रूथ, मतलब जो सच बोला बीरबल ने उसको सुन के वो सरप्राइज्ड हो गए. और क्यों, कैसे हुआ ये, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गए. और फिर क्या बताते हैं बीरबल, किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. फिर किंग अकबर बीरबल से पूछते हैं, ये कैसे आपने जाना कि हिज मदर टंग इज तेलुगु. और पंडित ने भी बोल दिया, येस माय मदर टंग इज तेलुगु, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना. नाउ नेक्स्ट व्हाट बीरबल इज आंसरिंग. Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. और कैसे बताते हैं बीरबल, यस बीरबल जवाब देते हैं, जब भी कोई मुश्किल का वक्त होता है, when we are scared, when we are afraid, at that time we speak in our मदर टंग. हम अपनी मदर टंग में बोलते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कॉकरोच का, लीजर्ड का, लायन के सामने तो ठीक है सब डरते हैं, बट कॉकरोच, लीजर्ड वो सब होता है, छोटी छोटी चीज़ें, किसी को एंट से डर लगता है. देर आर मैनी थिंग्स टू बी स्कैर्ड, अफ्रेड हो ही जाते हैं हम, है ना. तो दैट टाइम वी स्पीक इन अवर मदर टंग. एज आई एम गुजराती, आई विल स्पीक इन ओई माँ ओई बापलिया, लाइक दैट ना. एंड द सेम वे दिस पंडित ऑल्सो, पंडित भी डर के क्या बोला, पंडित स्पोक इन तेलुगु. यस, वो डर गया था, प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ, ऐसे करके डर के उठ गए और चिल्लाने लगे, और वो भी अपनी मदर टंग में. सो दिस वे बीरबल कुड कैच हिम. यस, बीरबल को पता चल गया कि हिज मदर टंग इज तेलुगु. And he also told the king how he had gone to Pandit's room at night. फिर बीरबल ने राजा को बताया, किंग अकबर को, कि वो कैसे उन्होंने पूरा मतलब उनके रूम में गए, फिर उनके कानों में कुछ बोला, फिर फैदर से गुदगुदी भी की उनके कानों में, टिकलिश टच किया फैदर से उनके कानों में. सो वो थोड़े डर गए और वो बोलने लगे, मतलब उठ के बोले, ओई माँ ओई बापलिया, मैंने बचाओ, लाइक दैट, स्पोकिंग तेलुगु. यस, सो दिस वॉज द ट्रूथ एंड दिस स्टोरी इज एडप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज. बच्चों, बचपन से हमने बहुत बार सुना है ना अकबर और बीरबल की स्टोरीज. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. एक ये स्टोरी है अकबर और बीरबल के कलेक्शन में, उसमें से ली गई है. सो दिस वॉज द स्कॉलर्स मदर टंग. बच्चों, इट वॉज इंटरेस्टिंग ना, मज़ा आया ना. येस, वॉट यू लर्न, येस यू लर्न दैट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. येस स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. येस, सो क्वेश्चन 1 इज Who came to Akbar's court? अकबर के कोर्ट में कौन आया? A learned Pandit came to Akbar's court. Yes. Next is what did he claim to know? उसने क्या claim किया? He claimed to know many languages. Yes, the Pandit was knowing many languages. So he claimed to know the languages, that is many languages. Then what, how did he challenge everybody? उसने सबको कैसे चैलेंज किया? हाँ, he challenged everybody at the court to name his mother tongue. उसने सबको चैलेंज ऐसे किया कि tell me what is my mother tongue. Yes, this way he challenged the people in the पैलेस, कोर्ट में. यस, नाउ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर टंग? आपकी मदर टंग
क्या है, विच सिटी यू लिव, कौन से स्टेट में रहते हो, उस हिसाब से अपनी मदर टंग होती है. आई लिव इन गुजरात, सो माई मदर टंग इज गुजराती, मेरी मदर टंग गुजराती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट पंडित्स मदर टंग. बीरबल ने कैसे जाना कि पंडित की मदर टंग क्या है. बीरबल फाउंड आउट पंडित्स मदर टंग बाय गोइंग टू पंडित्स रूम एट नाइट व्हेन ही वॉज asleep. जब पंडित सो रहा था रात को, उसके कमरे में गया बीरबल, यस, एंड विस्पर्ड इन हिज ईयर एंड टिकल्ड हिज ईयर, और उसने विस्पर किया कानों में एंड टिकल किया फेदर से, याद आया ना. एंड सो द पंडित शाउटेड इन हिज मदर टंग. फिर ऐसे नींद में सोए हुए थे पंडित, एकदम से डर गए और शाउट किया, और शाउट भी कैसे किया, अपनी मदर टंग में. सो द आंसर इज बीरबल फाउंड पंडित्स मदर टंग बाय गोइंग टू पंडित्स रूम at night when he was asleep and whispered in his ear and tickled his ear. So the pandits shouted in his mother tongue. So this way Birbal found out Pandit's mother tongue. Next question is, why did Pandit cry out suddenly and shout at night? पंडित रात को क्यों इतना रोया और चिल्लाया? The pandit cried out suddenly and shouted at night because Birbal had whispered in his ear and tickled it with the feather. क्योंकि बीरबल ने उसके कानों में आवाज़ की, विस्पर्ड एंड फेदर से टिकल किया, है ना. सो पंडित क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड. वंस अगेन आई विल रिपीट द आंसर. द पंडित क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड एट नाइट बिकॉज बीरबल हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर एंड टिकल्ड इट विद द फेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what challenge did Birbal take up? Birbal took up the challenge to name the Pandit's mother tongue. Yes, Birbal ने क्या challenge accept किया? Birbal took up the challenge that he will name the Pandit's mother tongue. So children, this all was about question and answer. Now we'll move to the next topic. Now we'll start the question, that is make sentences from given words. वर्ड्स दिए हैं, उसमें हमें सेंटेंस बनाने हैं. ट्राई टू मेक फर्स्ट इन योर मदर टंग, yes, which will make more easy. Yeah, see some words are given. What are they? Number one is converse. Converse क्या होता है? We have to talk. एक दूसरे से जब बातें करते हैं, that is converse. The okay. Students, now we'll start with the question, that is make sentences from the given words. शब्द दिए हैं, उसके हमें सेंटेंस बनाने हैं. The number one is converse. What is converse? When we talk each other, that is conversation. दूसरे के साथ जब बातें करते हैं, that is conversation. So the sentence is, we should converse in English in school. Okay, good. अभी हम ये सेंटेंस क्या बनाया? दैट वी शुड टॉक इन इंग्लिश इन स्कूल. स्कूल में हमें इंग्लिश में बातें करनी चाहिए, विच विल इम्प्रूव आवर इंग्लिश. यस ना? ओके. नेक्स्ट इज टिकल. चिल्ड्रन लाइक टू टिकल ईच अदर एंड लाफ. यस, बच्चे एक दूसरे को टिकल करते हैं और फिर हंसते हैं, है ना. नेक्स्ट इज चैलेंज. She accepted the challenge to win the race. उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया that she will win the race. और देखो बच्चों, मैंने अंडरलाइन भी किया है. वर्ड कन्वर्स, सेंटेंस बनाया तो अंडरलाइन किया. सेकेंड इज टिकल, सो आई हैव अंडरलाइन द वर्ड
tickle, then challenge, that is challenge. मुझे ये शब्द से पूरा वाक्य बनाना है ना. So I have used the sentence using this word. Next one is mastery. It is good to have mastery over anyone's skill. कोई भी skill में mastery होनी अच्छी बात है. So see, I have underlined the word mastery. Then feathers. Feathers are soft and light in weight. Yes, feathers क्या है? feathers एकदम soft और light होते हैं, है ना. जैसे हम पकड़ते हैं तो पता चलता है कि लाइट वेट है, और एकदम सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट. सी देन डिफिकल्टी. ही हैज़ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. इंग्लिश समझने के लिए उसको डिफिकल्टी होती है. देन ट्रूथ. वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. यस और नो? यस. नाउ students will do next question, that is match column A with column B. Yes, column A के साथ column B को match करना है. Yes, so the words, I will first repeat the words of column A, then column B, then we'll start to match the column. So the first word is king, then teacher, doctor, bus driver, then lawyer, and then mother. Now column B, children. Options A is children, patients, courtiers. Now the next is clients, then passengers, then students. तो बच्चों अभी हमने समझ लिया कॉलम A में कौन से वर्ड्स दिए, कॉलम B में कौन से वर्ड्स दिए. So we have to match column A with column B. See, column A में 1, 2, 3 given, column B is given A, B, C. So I have written here 1, 2, 3. We will match column A with column B. So the first one is king. King क्या आता है? What is the correct option for king? King के साथ क्या मैच होगा बच्चों? Children, patient, courtiers, clients, passengers, students. What it will come? Yes, courtiers. So the answer is C. Got it? Okay. Next is teacher. Teacher. It is very easy. है ना? Children, patient, courtiers, clients, passengers, students. Yes, the answer is students. Right here. F. Then doctor. So easy. It is patience. Then right here B. Next is bus driver. When we go in the bus, क्या होता है? बस ड्राइवर के साथ क्या होता है? कौन होता है? Yes, passengers. Okay, right here E. Then next is lawyer. Lawyer क्या आएगा लॉयर के लिए? चिल्ड्रन तो नहीं आ सकता. पेशेंट्स आ गया, कोर्टियर्स आ गया, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स आ गया, स्टूडेंट्स भी आ गया. सो इट विल कम क्लाइंट्स. यस. डी. नाउ मदर. मदर के साथ व्हाट इज लेफ्ट? ए चिल्ड्रन, और इट इज अंडरस्टेबल. मदर के साथ क्या आएगा? चिल्ड्रन. सो ऑप्शन इज ए. Correct option given and matched is A, children. Once again I will repeat with answers which will make more easy and understanding for you. King is courtiers, teacher is students, doctor is patients, bus driver is passengers, lawyers, clients, mother, children. So this was about match column A with column B. Students, next question is tick right the words which and with.
the sound ID. See, sound ID जो end करता है ना, you have to put the right mark and say each word aloud. उसके बाद उसको बोलो. So we'll start with the word accepted. Is it sounding ID? No, it is not sounding ID. Then answered. Is it? No. Then irritated. Irritated. Is it sounding ID? No. Then completed. Completed. Is it sounding ID? No. Then challenged. Challenged. Is it sounding ID? No. Cried. C-R-I-E-D. Cried. See, is it sounding ID? Yes, cried. So, put the correct mark. Yes. Then, find. Is it? No. Then, licked. It is ED sound, not ID sound. Licked. Then, celebrated. No. Then, failed. Is it? No. Then, surprised. Not yet. Then, fright. Is it? Yes. So, put the correct mark. So, you have to put the correct mark in the word ending in ID. Yes. So, the words were cried, then fried. Yes. Students, the next question is the truth balloon. Yes. See, the question is given like this. Suppose you are going on a camping holiday. What are the 4 most important things which will you carry from those attached to the hot air balloon? देखो, balloon दिया है, उसमें the things are attached. Yes, कौन कौन सी चीज़ें हैं? That is tool box, radio, blanket, swing kit, money, candle, then football, books, then box of matches, first aid kit, water bottles, food packets and jewelry. See, these are the things which are given. You have to choose the correct thing. That are 4 important things which will you going to camping holiday you will carry. That are, what is it? See, once again I will repeat. Toolbox, then radio, blanket, then sewing kit, yes, money, then candle, then football, then the 5 value books and the guide to a happy life, which is happy life के लिए 5 बुक्स है, वो कैरी करोगे क्या? Then ज्वेलरी कैरी करोगे. Then food packets, then water bottles, then first aid kit, then match box है कि नहीं? Okay. So what you will carry? Observe the image and answer now. See, now I will help you. The first thing you will carry is first aid kit, है ना? अभी क्या लेके जाओगे? फर्स्ट एड किट. और दूसरा वाटर बॉटल्स. एवरीवेयर वी कैरी वाटर बॉटल्स ना, वो तो चाहिए ही. देन फूड पैकेट्स भी चाहिए. देन मनी. दिस आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच विल यू कैरी. यस, दिस इज द ट्रुथ बलून एक्टिविटी. मजा आया ना? फर्स्ट एड किट, water bottle, food packets and money. क्रॉसवर्ड फन की एक एक्टिविटी करेंगे which will help us to understand different languages of our country. Yes, जैसे मैडम ने बताया था, India has 29 states and each has different languages. So there are some languages which are put in the crossword with the image. You can see
Yes, we will put the correct language in it. First letter is done for you. So one by one madam will speak and yes, you will be able to understand. Yeah. So we'll start with the crossword fun. Are you ready? Okay, let's start. This language is spoken in Orissa. See, what is it? Orissa में कौन सी language बोली जाती है? What is given? What is given? See, O is given. Yes, Oriya. Orissa में क्या बोला जाता है बच्चों? Oriya. Then next is, see, first हम across वाले सारे across वाले सारे पजल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डाउन वाले करेंगे. ओके, सो इट इज स्पोकन इन कर्नाटक. कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यस, कन्नड़ा. या सी, कन्नड़ा है ना, उड़िया के नीचे कन्नड़ा. देन नंबर 4 इज द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज. असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? असामीज. सी, यस, असामीज. देन दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ओके, तेलुगु. याद आया ना, पंडित की भी वो मदर टंग थी तेलुगु. सो ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, है ना. नेक्स्ट इज यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में ये लैंग्वेज सुनी जाती है. विच लैंग्वेज? विच? मराठी. द नेक्स्ट, नाउ विल सॉल्व द डाउन पजल्स, है ना. सी, द थर्ड वन इज द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज. केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सी, व्हाट इज गिवन? दिया है ना, फर्स्ट लेटर इज गिवन M. व्हाट विल कम? ओके, करेक्ट, मलयालम. नेक्स्ट इज, दिस इज अवर नेशनल लैंग्वेज. H इज गिवन और सबको पता है ये क्या है अपनी नेशनल लैंग्वेज? करेक्ट, इट इज हिंदी. ओके, नेक्स्ट नंबर 6, द लैंग्वेज ऑफ गोवन पीपल. गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? व्हाट इज द गोवन पीपल लैंग्वेज? या सी, K is given, that is Konkani. Correct? Yeah, you are also correct, Konkani. Then next 7th is, this is spoken in Tamil Nadu. Tamil Nadu में कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? City is given. Very good, Tamil. Next, number 9, it is widely spoken in Uttar Pradesh. So the answer is Urdu. U is given, URDU, है ना. So this way we understood different languages also. अभी हमने different languages के बारे में भी समझा. Which were they? That is Udiya. You also can speak Udiya. That is you can spell Udiya also and Uriya also. Then next is Kannada, then Assamese, then Telugu, then Marathi और मलयालम, देन हिंदी, कोंकणी, तमिल, हिंदी और उर्दू, दैट इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो बच्चों, दिस वॉज अबाउट क्रॉसवर्ड फन with which we enjoyed and learned about the different states having different languages. That is, which state speaks about which language, है ना. है ना इंटरेस्टिंग क्रॉसवर्ड फन? यस, एक्टिविटी, गेम एंड प्लस नॉलेज. या तो बच्चों, विद दिस विल एंड अवर चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द लेसन एंड एंजॉयड रीडिंग द लेसन, दैट इज द स्कॉलर्स मदर टंग, जिसमें हमने अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ा, है ना. उसकी स्टोरी अबाउट अ स्कॉलर, अबाउट different languages. Yes, so बच्चों, take care and study well. Bye.